Hi guys, I'm back with another lecture of Principles of Management, and in this lecture we're going to talk about the different leadership styles that we have and what leadership is all about. So before we start, just a brief introduction. So I'm Sandhya Rao, working as an assistant professor at St. Andrews Institute of Technology and Management, and the subject I'm taking up over here is Principles of Management. So far we have covered almost all the topics of Unit 3. The only topic that we are left with is leadership. Okay, and we'll talk about the different behavioral and situational approaches of leadership. So let's get started now. So what is leadership? See, leadership is the ability of the company's manager to guide the employees, to motivate them, to direct them, and to boost their morale. Okay, that's what leadership is all about. So obviously every leader is supposed to give certain directions to the employees, to his subordinates, but a good leader is always one who would also try to motivate them, who would also try to increase their confidence, increase their job satisfaction, and who would increase their morale. So any person who is competent enough to do these things can be called as a good leader. So boss is always different from a leader. So if you could see this picture over here, then in the diagram 1, you could see that the boss is only giving directions to the employees. So the 3 employees are lifting the entire work on their own shoulder, and the boss is only giving them directions. But if you could see the second picture, the boss is in the front and he also is helping, or you can say that he is also involved or participating in the work with the employees. ठीक है, तो यहाँ पे he is taking equal initiative. So here the person, the boss, is also a leader. But if we talk about the first diagram, then the person is only working as a boss and not a leader. So there's a slight difference between the boss and a leader. Every leader is a boss, but every boss may or may not be a leader. A good leader will always motivate and will always be with his team. So this is just a brief introduction about what leadership is. Okay? So now, what is the significance of leadership? Leadership gives effective directions. Definitely there's a slight difference. एक person जो है सिर्फ आपको instructions दे रहा है कि ये चीजें आपको करनी है, and there's another person who is also trying to make you understand why it is important for you to do it. Then definitely the second one will be more effective. So significance में ये बहुत important है leadership का, that leadership ensures effective direction. If let's say there are 2 faculties, one is only giving you directions that okay, you need to study and you need to work hard and just come to the class, delivers the lecture and then goes out. And there's another person, there's another faculty who would come to your class, would explain the topic, and would also go beyond the explanation, who would also try to make you understand why it is necessary, why is it important for you to study this particular topic, so that you understand it better and you actually grasp what is being taught to you. So the directions which are being given by the faculty in the second case will be more effective. Okay, likewise, it's a source of motivation. Definitely the employees gets motivated when they get such directions from their superior, and a good leader always try to motivate their employees, their subordinates, so that their morale gets boosted up. And yeah, the next thing is it also increases the confidence. See, when you are giving effective direction and the motivation is also being given to the employees, then definitely their confidence will automatically increase and the morale of the employees will also increase, and there will be a development of team spirit. All the employees, all the subordinates will work in an integrated form, and they will try to unify or they will try to integrate their efforts with the other group members, and there will be a team spirit. कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये चीज मैंने करी है, ये चीज मतलब I will be replaced by we. So there will be a team spirit. हाँ, वो लोग collectively कोई भी चीज को करना चाहेंगे rather than saying that no, I want to do it on my own and I will do it. I'll want to take the entire credit on my shoulder. तो ऐसा कुछ नहीं होगा. एक टीम स्पिरिट डेवलप होगी, हेल्दी टीम स्पिरिट, एंड इट विल आल्सो एनकरेज
initiative, which means that the employees will start taking up initiative. वो खुद से अपनी creativity show करेंगे, खुद से they will come up with certain new ideas and better ways to do the work. वो खुद से initiative लेंगे, because once their confidence has been increased, once their morale have been lifted up, definitely they will take the initiative. And the good leader will also be able to overcome the resistance to change. What happens is that in an organization, people resist to any change which is being imposed on them. कोई भी अगर नया चेंज हम लाना चाह रहे हैं तो यूजुअली जो पुराने लोग होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं कि नहीं, हमें चेंज नहीं चाहिए, हम जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, क्यों हमें बार बार जो है परेशान किया जाता है, मॉडिफाई करने को कहा जाता है, वी विल वर्क एज वी वर डूइंग बिफोर. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं. लेकिन अगर आपका लीडर अच्छा है तो वो आपको मोटिवेट करेगा, आपको समझाएगा, एंड द लीडर विल बी एबल टू कन्विंस यू, एंड कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी उस केस में चेंज को लेकर. सो दीज आर द बेनिफिट्स और यू कैन से सिग्निफिकेंस ऑफ लीडरशिप. देन वी हैव डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स. सो हमारे 3 टाइप के स्टाइल्स होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेज फ्री. So, autocratic is something wherein you are only trying to dictate the instructions. So, dictatorship जो है वो similar grounds पे रहती है जैसे autocratic है, जहाँ पर आप तानाशाही जो है वो करना चाह रहे हैं. So here we take that the leader or the manager is supreme and all the subordinates are secondary, and उनकी needs को या उनसे feedback जो है बिल्कुल नहीं लिया जाता है. All the decisions are taken by the leader or the manager, and he does not consider the feedback or suggestion from the team. Okay, so बिना consult किए अपनी टीम को decisions ले लिए जाते हैं autocratic leaders के through. Although this style is not very popular these days because people are more aware these days about their rights. So we all know that अगर कोई भी person इस तरह की leadership style को follow करेगा, then employees जो है वो छोड़कर चले जाएंगे वहां से उस organization को, because आज के टाइम पे social needs जो है वो ज्यादा important है as compared to other needs. Economic या financial needs से ज्यादा important social needs है, psychological needs है, and nobody wants to be suppressed by any person. तो इस वजह से कोई भी हमें enslave नहीं कर सकता है, कोई भी हमें जबरदस्ती हम पर चीजें थोप नहीं सकता है आज के टाइम पे. So that is why this style is not very popular these days. Although कुछ ऐसी countries हैं जहां पर हमने देखा है कि जो government है वो autocratic leadership style follow करती हैं, although not in its absolute form. वो थोड़ा सा उसमें भी modifications जो हैं आ गई हैं, तो प्योर फॉर्म में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहीं पे भी फॉलो नहीं किया जाता है आज के टाइम पे. बट अगर थोड़ा सा इसका एक एप्ट एग्जांपल मुझे देना हो तो आई कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो वर्क कर रही है, जहाँ पर लीडर जो है वो सुप्रीम माना जाता है एंड उनकी जो कंट्री मैन है उनसे सजेशन नहीं लिया जाता है. ठीक है. द नेक्स्ट स्टाइल इज डेमोक्रेटिक. Democratic is made up from the word democracy. We all know what democracy is, that when the people for whom you are actually taking the decisions take part in the decision making process. So जहाँ पर जैसे हमारी कंट्री में भी है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फॉलो किया जाता है, जहाँ पे आप अपनी टीम से सजेशंस लेते हैं जिनके लिए आप डिसीजन लेना चाहते हैं, बट अगेन द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द लीडर ओनली. ठीक है, लेकिन कंसल्ट किया जाएगा डेफिनेटली अपनी टीम से कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, सो दैट एक बेटर रिजल्ट निकल कर आए, एक बेटर सोल्यूशन निकल के आए, एक बेटर डिसीजन निकल कर आए. ठीक है. सो इफ यू कुड सी द डायग्राम ओवर हियर, देन द लीडर विल टेक द डिसीजन बट ही विल कंसल्ट ऑल द group members, all the subordinates. Okay. Then there is another leadership style that's called a laissez-faire style, in which the decisions are also taken by the employees on their own. So here we can say that employee-centric leadership है, employees ही खुद के हिसाब से सब कुछ करेंगे. So here we give full autonomy to the employees, and the leader जो है he will only be involved in case the employees need him. ठीक है. अगर employees को लगता है that they need the leader or they need to consult him, then the leader will come into the picture. Otherwise he'll stay out of the picture. The employees will work on their own. So usually जो आजकल startups हैं वो इसी तरह की चीजों को follow कर रहे हैं,
बिकॉज आपने देखा होगा कि आजकल बॉस को भी आप उनके नाम से उनको ग्रीट करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं। तो उस तरह का जो स्टाइल है उसको आप कह सकते हैं लेजर फेयर स्टाइल, जहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, लीडर और एम्प्लॉयज में दोनों सेम सिमिलर ग्राउंड्स पर हैं। बस अगर आपको लगता है कि आपको कंसल्ट करने की जरूरत है, डेफिनेटली आपके लिए वो चीज अवेलेबल रहेगी, बट आपको अपने लिए खुद सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। So in this style of leadership, the subordinate take the decision on their own, reducing the role of leader. And the leader only comes into the picture when his presence is required by the employees. So if I try to compare all the three leadership styles, then we can say तीनों आपकी ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक दोनों में डिसीजन जो है वो लीडर ले रहा है, ठीक है। लेकिन ऑटोक्रेटिक में कोई सजेशन नहीं लिया जा रहा है सबॉर्डिनेट से, डेमोक्रेटिक में सजेशंस लिए जा रहे हैं सबॉर्डिनेट से, और लेजर फेयर में आपके डिसीजंस भी एम्प्लॉयज ही ले रहे हैं। सो दिस इज अ क्लियर पिक्चर ऑफ ऑल द थ्री स्टाइल्स दैट वी हैव। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स लीडरशिप स्टाइल्स। जो आपकी अप्रोचेस हैं डिफरेंट सिचुएशनल एंड बिहेवियर, उनको हम अब कवर करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द बिहेवियरल कॉन्सेप्ट, दैट मींस जहां पर आप बिहेवियर देखते हैं कि लीडर जो है वो का मतलब लीडर के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का स्टाइल फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हमारी पहली थ्योरी है ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी की। तो इसमें ये कहा जाता है दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ लीडर, टास्क ओरिएंटेड लीडर्स और पीपल ओरिएंटेड लीडर्स। सो हियर वी आर सेइंग कि दो टाइप के बिहेवियर हैं, टास्क ओरिएंटेड और पीपल ओरिएंटेड। सो ये जो लीडरशिप थ्योरी डेवलप की गई थी, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक क्वेश्चनेयर फिल कराया गया था बहुत सारे लोगों से। 150 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक लिस्ट, 150 स्टेटमेंट्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करी थी, एंड हमने ऑलमोस्ट हर ग्रुप के लोगों से इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पुट अप करे थे। कॉलेज स्टूडेंट्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, प्राइवेट कंपनीज थी, मिलिट्री पर्सोनल थे, सब टाइप के लोग थे। So we try to understand that what exactly is the leadership style. So we come to know that the leader can either be task oriented or people oriented, which means that either the leader will be focusing more on the formal structure and formalities, like how they can work towards better गोल, अपने गोल्स को कैसे फुलफिल करना है। तो वो सिर्फ और सिर्फ टास्क से रिलेटेड चीजों पे फोकस ज्यादा कर रहे थे, मतलब जॉब क्लैरिटी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी है, अगर कोई डाउट है तो उसको क्लैरिफाई करना है। सो दे वर ओनली कंसर्न्ड विद गिविंग डायरेक्शंस। सो टास्क ओरिएंटेड में आपका जो बिहेवियर है वो कहाँ पर रहेगा, चीजों को इनिशिएट करने में, बिकॉज द लीडर विल इनिशिएट द थिंग्स, he will also organize the things, he will clarify if there is any confusion, and he will collect the necessary information. But he will not be concerned about the people interpersonal relationship, although to an extent definitely वो consider किए जाएंगे, but larger extent पे नहीं। ज्यादातर फोकस हमारा इन्हीं चीजों पे रहेगा, टास्क ओरिएंटेड चीजों पे रहेगा। Then there are another kind of leader who are called people oriented leader. Now they focus more on the interpersonal relationship of the employees, and they feel that the social needs or the inner needs of the employees needs to be satisfied. So यहाँ पे उनका focus रहेगा लोगों को motivate करना, encourage करना, to listen or to hear their problems and to observe what's happening around, and also he'll try to coach or mentor his employees. तो यहाँ पे हम उनकी सोशल नीड्स को या साइकोलॉजिकल नीड्स को कंसिडर कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू बिकम मोर सिंपैथेटिक एंड मोर कंसर्न्ड विद द इंटरपर्सनल रिलेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज। तो ये पीपल ओरिएंटेड लीडर्स होते हैं। तो ये बिहेवियर के ऊपर है, लीडर का बिहेवियर ही ऐसा होता है जिसके बेसिस पे हम अलग अलग थ्योरीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। देन अनदर काइंड ऑफ अप्रोच इज सिचुएशनल अप्रोच, जिसमें हम तीन थ्योरीज को स्टडी करेंगे। फिडलर कंटिजेंसी थ्योरी, देन वी हैव पाथ गोल थ्योरी एंड हर्शे ब्लैंकार्ड सिचुएशनल मॉडल, ठीक है। तो ये तीन मॉडल्स हम अभी स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग विद द फिडलर कंटिजेंसी थ्योरी। अच्छा, सिचुएशनल का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप सिचुएशन को देखते हुए खुद के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। सो फर्स्ट वन इज द फिडलर कंटिजेंसी थ्योरी। So Fiedler states that there is no best way of any manager to lead the employees. कोई भी एक best way नहीं होता है, different different theories and different different situations है
जिनके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो कोई भी एक फिक्स चीज नहीं है। सो यहाँ पे हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि हमें किस टाइप का मॉडल चूज करना पड़ेगा। सो वी कंसिडर थ्री थिंग्स: टास्क स्ट्रक्चर, लीडर मेंबर रिलेशन एंड पोजिशनिंग पावर. So task structure means that what is the kind of or what is the nature of job that your employees are doing. जो आपका job profile है वो ज़्यादा structured है या unstructured है या medium है, which means अगर job बहुत ज़्यादा structured है तो job clarity बहुत ज़्यादा होगी, roles and responsibilities clearly defined होंगे, and there will be no scope for any confusion or ambiguity. ठीक है, but if the job is unstructured, then you don't know what you want your employees to do. Also, the employees don't have any job clarity as to what they are expected to do. ठीक है, तो उस केस में confusion और ambiguity का scope काफी होता है. Then leader and member relation, which means कि interpersonal relation कैसा है leader और members के बीच में, whether there is high level of loyalty and dependability and support, or there is an absence of support. तो ये चीजें भी डिटरमाइन करेंगी. अगर फेवरेबल है आपका लीडर मेंबर रिलेशनशिप, इट मीन्स कि दोनों में काफी कोऑपरेशन है एंड एक लॉयल्टी है, डिपेंडेबिलिटी है, सपोर्ट है. एंड लेकिन अगर दूसरा केस है अनफेवरेबल है, जहाँ पे आपके कोई भी मतलब सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, एंड देयर इज नो लॉयल्टी ऑल्सो, देन दैट इज अनफेवरेबल. ठीक है, तो हम यहाँ पे हर चीज को फेवरेबल और अनफेवरेबल की टर्म्स में देख रहे हैं, जिसके बाद हम अपनी थ्योरीज डिसाइड करेंगे कि किस तरह का हमारा स्टाइल जो है वो होना चाहिए. Positioning power means that what kind of power does the manager have. So it means the amount of power or authority a manager perceives the organization has given him or her for the purpose of directing, rewarding and punishing subordinates. ठीक है, देखो जो भी पावर एक मैनेजर के पास होती है अपने एम्प्लॉयज के साथ डील करने के लिए, वो पोजिशनिंग पावर है. अगर पावर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि मे बी एम्प्लॉयज जो हैं उनके पास उनको पनिश करने की ज्यादा जरूरत है, या उनको मतलब अगर हमें लगता है कि हमें एम्प्लॉयज के लिए अगर डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज करनी है, देन दैट्स अनफेवरेबल. एंड अगर हमारी फेवरेबल पोजिशनिंग पावर तब होगी जब लीडर के पास ज्यादा पावर होगी. ओके, सो दैट्स फेवरेबल. एंड अनफेवरेबल व्हेन द एम्प्लॉयज आर गिवन मोर पावर. So then Fiddler rated manager as to whether they were relationship oriented or task oriented. तो अब हमने कैसे डिसाइड किया कि कैसे हम टास्क ओरिएंटेड या रिलेशनशिप ओरिएंटेड बन सकते हैं. सो ही स्टेट्स, फिडलर स्टेट्स दैट अगर आपको लगता है कि टास्क ओरिएंटेड मैनेजर जो है वो बेटर परफॉर्म करता है, तो वो तभी होगा जब लीडर और मेंबर के बीच का रिलेशनशिप जो है वो अच्छा है, या फिर आपके स्ट्रक्चर्ड टास्क हैं. और पोजिशनिंग पावर कैसी भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है. सी टास्क ओरिएंटेड मैनेजर, एज आई टोल्ड यू, वो है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिसीज पर फोकस कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं. ठीक है, मतलब वो टास्क रिलेटेड चीजें ज्यादा कर रहे हैं. तो वो चीज हम कब करते हैं, जब आपका टास्क स्ट्रक्चर, जब आपका जॉब प्रोफाइल काफी स्ट्रक्चर्ड है, तब आप टास्क पे फोकस कर सकते हैं. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं. लेकिन अगर जॉब क्लैरिटी नहीं है तो आपको फिर बाकी चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी. उस पर अभी हम बाद में आते हैं, पहले एक एक चीजों को कंसिडर करते हैं. टास्क अगर आपका स्ट्रक्चर्ड है तो आप टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप फॉलो कर सकते हैं. लीडर मेंबर रिलेशनशिप इसके साथ साथ अगर आपका अच्छा है तो भी आप टास्क ओरिएंटेड बन सकते हैं मैनेजर. ठीक है, क्योंकि आपके बीच में काफी क्लैरिटी रहेगी. आपको अगर कोई डाउट आता भी है जस्ट इन केस, तो यू कैन आस्क देम. देन आपका पोजिशनिंग पावर फिर वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप टास्क ओरिएंटेड हो और टास्क भी आपका टास्क जो है वो क्लियरली वेल डिफाइंड है और रिलेशनशिप भी अच्छा है. तो पावर आपके पास कितनी है उससे फिर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयज आपकी बात ऑटोमेटिकली मान लेंगे. ठीक है, देन आपको अगर ये लगता है कि टास्क जो है वो भी अनस्ट्रक्चर्ड है और जो पोजिशनिंग पावर है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आपके पास पावर बहुत है, तो फिर आप क्या करोगे, आप ऑटोमेटिकली अपने आप बातों को मनवा लोगे. फिर चाहे वो लीडर और मेंबर का रिलेशनशिप कैसा भी हो, स्ट्रॉन्ग हो या पुअर हो.
अगर पावर ज्यादा है आपके पास तो आप टास्क ओरिएंटेड बन सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टास्क स्ट्रक्चर वीक है या स्ट्रांग है, ठीक है। यानी कि अगर हम अनफेवरेबल कंडीशन लेके चल रहे हैं बाकी दोनों चीजों में तो भी वर्क कर जाएगा टास्क ओरिएंटेड मैनेजर, ठीक है, क्योंकि उसके पास पावर बहुत है, वो अपना काम करा लेंगे। लेकिन आपको अगर बनना है रिलेशनशिप ओरिएंटेड तो उस केस में आपका लीडर मेंबर रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी और जो सिचुएशन बनेंगी उस केस में आप फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड मैनेजर्स बन सकते हैं, ठीक है। टास्क ओरिएंटेड मैनेजर देखो वही होगा जो कि अपने काम पे ज्यादा फोकस करेगा, वो ये सोचेगा कि मेरा काम जैसे तैसे कंप्लीट हो जाए, मतलब वो रिलेशनशिप पे इतना फोकस नहीं करेगा। लेकिन जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा वो इंटरपर्सनल रिलेशन पे ज्यादा फोकस करेगा, अपने एम्प्लॉयज को खुश रखने की कोशिश करेगा, उनका मोराल हाई रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। Then next kind of leadership model is Hershey Blanchard model, situational model. इसमें हमने 4 situations रखी हैं और इसमें भी हमने यही देखा है कि कैसे टास्क बिहेवियर और रिलेशनशिप बिहेवियर अफेक्ट करता है आपके लीडरशिप स्टाइल को। सो यहाँ पे हमारा टास्क बिहेवियर यही है कि किस एक्सटेंट तक लीडर जो है वो अपने टास्क को लेके इंस्ट्रक्शंस दे रहा है किसी भी इंडिविजुअल को या ग्रुप को। मतलब जब हम ये बताते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, तो ये टास्क बिहेवियर है जो कि सिर्फ और सिर्फ टास्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो यहाँ पे द लीडर इज एंगेज इन वन वे कम्युनिकेशन विच मीन्स ही इज ओनली गिविंग इंस्ट्रक्शंस, ही इज ओनली गिविंग डायरेक्शंस, he is not accepting any feedback or suggestion from the employees. That is task behavior. And relationship behavior, on the other hand, is a two-way communication wherein you also take feedback from the employees as to what they feel about the job. Okay? And the leader will also try to support the employees. Then there is another concept that we need to understand, that's maturity. Now maturity is the willingness and ability of the employee to work on their own. जब वो खुद से इनिशिएटिव लेते हैं कि हम ये चीज को करेंगे and they take full responsibility for it. Okay? So अगर हमें ये डिसाइड करना है कि किस टाइप का लीडरशिप स्टाइल होना चाहिए तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो तीनों चीजें हैं ये इनकी डिग्री को हम मेजर करते हैं, जिसके बेसिस पे फिर हम बताते हैं कि हमें किस टाइप का स्टाइल यूज करना है। सो देर आर 4 quadrants if you could see here. The first one where there is high task and low relationship, which means task पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं and employee के relationship पे फोकस कम कर रहे हैं. So you are only telling them. So this is first one. So you could see here telling is this style reflects high task and low relationship behavior. The leader only provide clear cut instructions and specific directions. ठीक है. Second one is when you are trying to sell. जहां पर हाई एम्प्लॉय एंड हाई टास्क, मतलब रिलेशनशिप पे भी फोकस ज्यादा किया जाएगा और टास्क पे भी ज्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप कब करते हैं, व्हेन यू आर ट्राइंग टू एनकरेज टू वे कम्युनिकेशन and you are trying to build high confidence and motivation on the part of employees, ठीक है। Although the leader will take full responsibility and will control the decision making here also, क्योंकि वो high task भी perform कर रहा है, task behavior भी काफी high है। Then there is another one that's participating, in which there is high relationship but low task behavior, मतलब task पे focus कम है but relationship पे focus ज्यादा है। तो इस टाइप के स्टाइल में जो लीडर है वो डिसीजन मेकिंग जो है वो कम लेते हैं एंड वो रिलेशनशिप पे फोकस ज्यादा करेंगे, यानी कि डायरेक्शंस कम देंगे। तो वो अलाउ करते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं वो पार्टिसिपेट करें, वो खुद से इनिशिएट ले। और ये तभी होता है जब आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, वो उनका जो रेडीनेस लेवल है, मतलब जो वो प्रिपेयर्ड है किसी भी चीज को करने के लिए, वो मॉडरेट है, ठीक है। देन डेलीगेटिंग या डेलीगेशन जो है वो तब करेंगे जब आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉयज जो हैं दे नीड लो रिलेशनशिप एंड लो टास्क बिहेवियर, मतलब उन्हें अब ज्यादा जरूरत किसी भी चीज की नहीं है, वो ऑलरेडी काफी मेच्योर हो चुके हैं, मतलब उनको काफी टाइम हो गया है ऑर्गेनाइजेशन में रहे एंड अब उन पे कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि अब उनको ना तो डायरेक्शन देने की जरूरत है, ना ही उनके साथ ज्यादा रिलेशनशिप बिल्ड करने की जरूरत है,
क्योंकि रिलेशनशिप ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, ठीक है। स्टार्टिंग के जो इनिशियल ईयर्स होते हैं उसी में आप रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, एंड अगर आप काफी टाइम से उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं तो कमिटमेंट ऑटोमेटिकली डेवलप हो चुका है। तो अब यहाँ पे ना तो ज्यादा रिलेशनशिप पे फोकस किया जाएगा, ना ज्यादा टास्क बिहेवियर पे, क्योंकि आप खुद ही चीजों को करना स्टार्ट कर दोगे। तो आप पे चीजें डेलीगेट कर दी जाएंगी, आप पे फुल कॉन्फिडेंस रखा जाएगा, एंड आपको चीजें ये अथॉरिटी दे दी जाएगी कि आप अपने आप चीजों को करिए, एंड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, ठीक है। सो दैट्स डेलीगेशन, ओके। Then there is another theory that goes around, that's house path goal theory. House path goal theory is जब आपने ये देखा कि मैनेजर की जो रोल है वो ये है कि आपको कैसे गाइड करना है, कैसे आपको बेस्ट वे बताना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इसके बेसिस पे लीडर जो है अलग अलग सिचुएशन के बेसिस पे अपने आप को एंगेज करता है अलग अलग रोल में। तो देर आर 4 kinds of roles that we have find out: अचीवमेंट ओरिएंटेड, डायरेक्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड सपोर्टिव। तो अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर कब होता है? जब वो अपने चैलेंजिंग गोल्स जो है वो सेट करता है, जो अचीवमेंट पे ही फोकस करता है, जिसके लिए यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो कैसे टास्क अचीव करे, कैसे अचीवमेंट करे वो, ठीक है, अपनी लाइफ में। ये बेस्ट तभी है जब आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, वो जॉब चैलेंजेस लैक करते हैं। तो उनको आप थोड़ा चैलेंजेस देना चाहते हैं, आपको उनको थोड़ा अचीवमेंट ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, मतलब उनके अंदर थोड़ी मोटिवेशन की कमी है, आप उनको मोटिवेट करना चाहते हैं। डायरेक्शंस आप उनको तब देते हैं जब आपको लगता है कि वो ज्यादा एम्बिशियस जॉब है, ठीक है। तो तब आप उनको डायरेक्शन, सॉरी देयर इज अ मिसमैच। डायरेक्शंस आप तब देते हैं जब जॉब चैलेंजेस नहीं होते हैं, एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड तब रखते हैं जब आप काफी एम्बिशियस होते हैं, ठीक है। तो द लीडर लेट्स फॉलोअर नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम एंड टेल देम हाउ टू परफॉर्म देयर टास्क इन डायरेक्शंस, ठीक है। डायरेक्टिव मॉडल में वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस देते हैं कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, एंड ये वो तभी करते हैं जब जॉब चैलेंजेस की कमी होती है, ठीक है। पार्टिसिपेटिव इज व्हेन द लीडर कंसल्ट्स विद फॉलोअर्स एंड आस्क देम फॉर सजेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, मतलब वो अलाउ कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करने के लिए। Then supportive is when the leader is very friendly and approachable, which means that the employees can go to the leader as and when they feel like if they are having any problem, then they can consult the leader. So यहाँ पे हम psychological well-being पे focus ज़्यादा कर रहे हैं, ओके। सो अब ये डिपेंड कैसे करता है कि आप कौन सा वाला स्टाइल जो है वो यूज करने वाले हैं। इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, इधर द एनवायरमेंट और द फॉलोअर। हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, विच इंक्लूड्स, और या इंटरनल भी हो सकता है, विच इंक्लूड्स द टास्क स्ट्रक्चर, द अथॉरिटी सिस्टम एंड वर्क ग्रुप। ऑल्सो फॉलोअर्स में आपका जो है वो आएगा एक्सपीरियंस, परसीव्ड एबिलिटी, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब चीजें। तो ऑल दीज थिंग्स when combined together determine as to what kind of leadership style you are going to follow, okay. I hope you have understood it, and this is it for this lecture. And from the next lecture, I'll start the unit 4. So the two questions that I want to give you as homework from this lecture are: you have to explain the situational theories of leadership, and you have to explain the significance of leadership. So this is it. Thank you, guys.